Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing great. Dear students, a warm welcome to all of you on our Genius Academy online digital platform. Dear students, as you know, we are discussing about the topic is work, energy and power, and in the previous discussion, we have discussed some important topics, some important terms related to work, energy and power. This work, energy and power chapter is very much important, and it is basically the conclusion what we have read in the previous chapters, that is kinematics and laws of motion. So my dear students, let's have a quick review on what we have discussed in previous lectures, and that is basically what are the different terms related to work, power and energy. And in our first lecture we have discussed about work done by a constant force, and after that we discuss about the nature of work, and in which we discussed the positive work, negative work and zero work, and we discuss some important problems on zero work also. Hope you have gone through the lecture very well, and in today's topic, in today's lecture, we will discuss about the constant force, some important numericals regarding constant force. And in today's lecture, we will discuss about when the force occurs in 2D or 3D, force in x, I cap, j cap and k cap, and how we can calculate the work done when a particle changes its position from r1 vector to position vector r1 to position vector r2, how we can find out the work done. So my dear students, this is very important lecture, and those students who will remain with me in this lecture, definitely there is not a single kind of problem they will face in numerical solving. Let's have a look. So my dear students, in today's lecture, that is basically the vector form of work done, and in this we will find out the work done when the force occurs in 3D. So my dear students, we have discussed it in the previous lecture, that is basically work W is equal to, what is the basic formula of work done, that is W is equal to, that is F dot S in the vector form, that is F vector dot S vector, and this is equivalent to Fs cos of theta, Fs cos of theta and Fs cos of theta. This is the basic formula how to find out the work done. Now, so dear students, if we will take Yx, if it is y versus x, we may say if a particle changes its position from P1, this is the particle's position P1, and it changes its position from P1 to P2. Let us suppose after some time it reaches to P2, and we know that we can write it like this, that for this particular position P1, this is R1 vector, and it changes from this R2 vector, and from this to this is our displacement vector, and we may write it S vector, or we may write it delta S like this. And this displacement vector, we know that if R1 is the initial position, R1 is the initial position, R1 is the initial position, R1 is equal to initial position, initial vector, we may say it R1 is initial vector, initial vector. This R1 is the initial vector, this R1 initial vector from this, and R2 is the R2 final vector, final position vector. And how can we find out initial vector, final vector, and how can we find out this displacement vector S, or we can write it delta R, that is basically R2 vector minus R1 vector. So here we can calculate this displacement vector R2 minus R1, that is final
minus initial, final vector minus initial vector. If we have given two positions of a particle r2, r1, and simply we can find out the displacement vector simply r2 minus r1, right? And after that, if the force is given, we can simply go for the dot product of F dot S and we can find out the work done, right? This is r2 minus r1, and after that the W is equal to that is F dot S, and we can write it W is equal to F dot R2 minus R1, and simply we can find out in this way, we can find out the work done, that is W is equal to F R2 minus R1, right? Simple. And after that we will try to find out we will find out the solution of some important numericals that is related with position vector when a particle changes its position from R2 to R1, and how we can calculate the work done. And this is 1D, 2D and 3D. Suppose the force is like this. If force F is equal to Fxi cap plus Fyj cap plus Fk cap, like this. This means this is a 3D force, and it is only xi cap and yj cap, it is a 2D force. And simply when the position changes from R2 to R2 xi cap plus Fyj cap, xj cap, like this, it is a 2D, and if it is k, it is a 3D, right? So now we will try to find out some solutions of some important numericals, how to deal with that. Simply, how to find R2 minus R1 when two position vectors are given, R2 minus R1, and simply we can dot it with the force and we will find out the solution of the numericals. And now I will show you some important numericals that have been asked in the previous examinations, that is very important, and these are not so much difficult that we cannot find out the solution for these problems. Let's have a look. In our first problem, let me talk about in our first problem, that is a particle is acted upon by a constant force, that is 4i cap plus j cap minus 3k cap, and 3i plus j minus k cap is displaced from the point I. Now here, one of the important thing which we have to take into consideration when the force is a particle is acted upon by a constant force 4i cap, and that means our forces are F1 force. F1 force, that is what? That is our 4i cap plus j cap means 1 j cap minus 3k cap. This is our force F1, and F2 force is F2 is equal to, here two forces are given, so we can find out the net force F1 plus F2. Simply we can find out the force F1 and F2. That is F2 is our 3i cap plus j cap and minus k cap. These are the two forces, and simply we can find out first of all we will find out the net force, and that is net force is F net, that will be equivalent to, simply we can add, that is 7i cap plus 2j cap, that is plus minus 4k cap. This is our net force. This is our net force. Now net force, and after that there are two position vectors, that is our R1 position vector. Let's have our R1 position vector, that is I cap plus 2j cap plus 3k cap. This is R1, and R2 is our what? That is our to the point 5i cap plus 4j cap plus 4j cap plus k cap. This is position vector R2 and R1. And what we have discussed before that, we have discussed about how to find out the position vector when two vectors are given R2 minus. Simply we will go through R2 minus R1. So we can calculate by R2 minus R1. R2
minus r1, and that is our delta r position vector, change in position vector, and that is I cap 5 I cap final second 5 I cap plus 4 j cap plus k cap minus I cap plus minus 2 j cap. I have multiplied it with the minus 3 k cap. Now calculate, that is our delta r. 5 minus I, that is 4 I cap. 4j minus 2j, that is plus 2j, plus k minus 3k, it is minus plus minus minus, that means minus 2k. This is our delta r. This is our delta r. Simply what in this we calculate first that F two forces F1 and F2 दोनों का सम करके मैंने नेट फोर्स निकाला, एंड आफ्टर दैट टू पोजीशन वेक्टर्स R2 एंड R2 सिंपली मैंने R2 माइनस R1 करके इन दोनों को निकाला, तो डेल्टा R 4 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा W इज इक्वल टू दैट इज F डॉट S। तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास फोर्स कितना है, दैट इज W इज इक्वल टू दैट विल बी 7 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप इंट हमारे पास जो इंट के कैप जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास होगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट इज डेल्टा आर, दैट इज आवर 4 I कैप, दैट इज 4 I कैप प्लस 2 j कैप minus 2 k cap, and simply we can multiply the both. That means it is W is equal to 7 into 4, I को I के साथ करेंगे, J को J के साथ करेंगे और K को K के साथ करेंगे, that is 28 I into I, that is 1 I into I, that is 1 plus, that means 2 into 2, that is 4 J 4 minus that means plus 4 2s are 8, that means 8. So that means 8 that is 12, and that means it will be 28 plus 12. So W is equal to that will be 28 plus 12, 28 plus 12, that means it will be 40 joule will be our answer. So our answer is 40 joule, that means our answer is 40 joule. पहले हमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जितना हम प्रैक्टिस करके जाएंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहता हूं, मैं ये चीज क्या बोला मैंने इस वाले सेशन में, मैंने सिंपली बोला अगर हमारे पास दो फोर्सेस दिए गए हैं Fx I कैप Fy j कैप 2D या 3D में, तो यहां पर हमें अगर पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन R2 से R1 चेंज हो रही है, R1 से R2 चेंज हो रहा है, तो सिंपली हम उसका डेल्टा R निकालेंगे, एंड दैट इज सिंपली R2 माइनस R1, और ये हमने यहां पर निकाला था R2 माइनस R1, राइट। और उसके बाद में हम इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स के साथ। सिंपली यहां पर भी वही चीज था, मैंने एक पार्टिकल का दो फोर्सेस लग रहे हैं, I कैप J कैप 3 I कैप प्लस J माइनस K कैप, दो लग रहे थे, और दोनों को मैंने पहले F नेट निकाला, बाद में R2 माइनस R1 किया, और उसके बाद में दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स एक प्रैक्टिस का गेम है, हार माननी नहीं है। तो जो डर गया वो मर गया, तो हमें डरना नहीं है। तो बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जितना हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसके हिसाब से आप चलिए, कोई मसला नहीं, उतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप बड़ा जल्दी करेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जल्दी से बताइए, ए फोर्स F2 I कैप माइनस J कैप प्लस 4 K कैप डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल अप टू डिस्प्लेस, इसमें कोई पोजीशन वेक्टर दो नहीं दिए गए हैं, सिंपली F डॉट S आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन है, दैट वर्क डन
W इज इक्वल टू, दैट इज W इज इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, तो ये जो हमारे पास Fs cos ऑफ थीटा, इसी को बोलते हैं F डॉट S। तो यहां पर F क्या है, W इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, F हमारे पास क्या है, F हमारे पास क्या है, हमारे पास F है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारे पास दिया गया है। और साथ में इसको हम सीधा डॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, और उस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, कैलकुलेट वर्क डन। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए बता दीजिए W क्या आएगा हमारे पास। W जो हमारे पास आएगा दैट इज 2 6 12 I इंटू आई, दैट इज 1, दैट इज 2 minus 2 and that means minus 4, k इंटू k 1, I इंटू j 1। तो ये बनेगा हमारे पास W जो होगा दैट इज 12 माइनस 6। तो जब हमारे पास 12 माइनस 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6 करके, दैट इज हमारे पास 12 माइनस 6 जो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, दैट मीन्स हमारा जो W आ जाएगा वो 6 जूल आ जाएगा। I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। लेकिन ये कभी याद नहीं रखना है पहले को पहले के साथ, जैसे हमारे समझा रहे हैं हमारी टीचर्स, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ऐसा कभी भी नहीं करना है। करना क्या है, I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। तो हो सकता है एग्जामिनर हमारी तरह चालाक होगा, पहले वहां से J वाला देगा, यहां फोर्स I में दे देगा, तो आप I को J के साथ करोगे, ऐसा नहीं है। सो हाउ यू कैन डील विद दैट, सिंपली I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ, और आज से हम पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ हम नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि इतना जब इंसान का कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं सीरियली, जैसे तगड़ी वाले पहले आसान से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद जब इसकी ग्रिप बनेगी, थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स लगा के जाएंगे, फिर उससे बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, प्रॉब्लम्स लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख के हमें कहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम उसके साथ डील करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने बोला, अभी तक जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एग्जामिनर इससे बाहर तो नहीं निकलेगा, ये तो कंफर्म है कि इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया, I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ सिंपली मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेना है, एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज सच इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, राइट। तो बच्चों को हमेशा परेशानी यही रहती है। तो लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि बच्चे जो हैं आजकल, जो हमारा डिजिटल दौर है, हमारे पास जो सबसे खतरनाक ड्रग जो हमारे हाथ में है, पेरेंट्स को मैं अपील करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में भी पेरेंट्स से मैंने रिक्वेस्ट की थी, पिछले वीडियो में भी मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में ऐसा ड्रग दिया है जिसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो चाहता है वो इस मोबाइल से आराम से कर सकता है। तो अब रही बात, हम हमेशा बच्चों को देख रहे हैं वो ऐसे हाथ रील्स पे रील्स, यानी इतनी अच्छा अटैचमेंट हो गई है इसके साथ, वो अब यहाँ की सुनता भी नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा, ये ऐसा जो है अंगूठा है ना, ये ऐसे, तो नेक्स्ट एवोल्यूशन जब हो जाएगा तो ये हाथ, ये जो है ना, ये अंगूठा बड़ा हो जाएगा इंसान का, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ये करते। अब आप बोलोगे ये जो बच्चे को इतनी कशिश इस चीज़ से क्यों है? तो ये जो है, ये इंसान की फितरत है कि ये जो वीडियो इसके सामने आ रहा है, इसको इसमें देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये इसकी एडिक्शन इतनी हुई है कि अब इसके बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रग के बगैर भी इंसान रह नहीं सकता है। तो डियर पेरेंट्स, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों का मेहरबानी करके ध्यान रखिए। ये जो अब आजकल एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में लगे रहते हैं, आजकल मोबाइल गेमिंग में पैसे लगा देते हैं, यहाँ बड़े भी लगा देते हैं, तो छोटों में हम कुछ ऐसे शिकायतें हमें मिल रही हैं कि अब हर कोई बंदा जो है इस ज़िंदगी की कश्मकश में इतना शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि मैं यहाँ से पैसे लगाऊंगा और वहाँ से मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। यथस वनान मोबाइल जार गिंदुन।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोबाइल की दुनिया ने इनकी दुनिया ही ख़त्म की है, मोबाइल की दुनिया ने इनका बचपन ही ख़त्म किया है। तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ध्यान रखिए, इनके मोबाइल में चेक करिए कौन से ऐप इनके मोबाइल में है, क्या कर रहे हैं इन दिन पर, इनको देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कल के डेट में ये मोबाइल ये इनकी ज़िंदगी का वबाल ना बने, इनको ध्यान रखिए और इनको थोड़ा बहुत देखिए, दिन भर ये क्या करते रहते हैं उन पर थोड़ा ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, ये भी सिंपल वही चीज़ है, इसको भी मैं करके बताता हूं और मेरे ख्याल से उतना मुश्किल अब नहीं होना चाहिए। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट, इसका एक पोजीशन ये है, इस पोजीशन से ये इस पोजीशन जा रहा है। तो हमारे पास जो पोजीशन है R1, जो हमारी R1 पोजीशन है, R1 जो है दैट इज -2i कैप प्लस 5j कैप एंड 0k कैप, क्योंकि वो है ही नहीं तो ये ऐसे है। तो हमारा पास जो R2 वेक्टर है, जो R2 पोजीशन है, दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप एंड 0k कैप, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2D वाला है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 2D में है, क्योंकि k इसमें नहीं है तो 2D में है, k भी होता तो 3D वाला होता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो R2, और ये नीट 2016 में पूछा गया है, देखिए बच्चा कैसा इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट 2016 में पूछा गया है। अब कुछ बच्चे होंगे ऐसे ऐसे हाथ रख के बैठे होंगे, अरे है तो कुछ नहीं, करना क्या है, R2 - R1 करना है, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। चलिए R2 - R1 ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि R2 - R1 आप जबानी करोगे, उतना बड़ा मसला नहीं है, मेरा पेन लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो R2 - R1। आई को आई में घटाना है, जे को जे में घटाना है, के को के में घटाना है, लेकिन R2 फाइनल माइनस इनिशियल करे, दूसरे को पहले से घटाना है, दूसरे वाले में से पहले को घटाना है, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हो गया। चलिए R2 - R1 करेंगे तो क्या बचेगा बच्चा, तो उसी को हम डेल्टा R बोलते हैं, उसी को हम डेल्टा R बोलते हैं, पोजीशन जो है उसी को हम डेल्टा R बोलते हैं। और हमारे पास है 4i कैप प्लस 3j कैप, माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद यहां से -2i कैप प्लस 5j कैप, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, बताओ तो क्या आ जाएगा, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, अरे बोल रे बच्चा, बोलो बोलो रे बोलो। 4i कैप, शाबाश, 4i कैप प्लस 3j कैप, हाँ जी, प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप, बोलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ कि ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है ना। चलो घटा दो, चलो भाई आ जाओ, घटा दो, लगा रे, 4 में से 4 to 6i कैप, 4 to 6i कैप प्लस 3 माइनस -2j कैप, हाँ ना बोले यार, अरे इतना आसान है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, देखो ले, ये तो मिल गया 6i - 2j, 6i - 2j, हाँ जल्दी से बोलो। अब फोर्स के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, जल्दी कर दो, फोर्स के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, फोर्स के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। इसका मतलब ये है, अगर आपको इसको समझाना पड़े मुझे, तो ये देख लो, ये देख, पहले जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये इसकी P1 पोजीशन है, P1 नहीं लिखते हैं सर, आप तो R1 लिख रहे थे, हाँ बढ़िया है। तो ये R जो है R1, दैट इज R1 जो हमारे पास है -2i कैप प्लस 5j कैप, और ये यहां से यहां इसकी जो पोजीशन है R2, दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा R, यही है R2 माइनस R1, ये लो, ये है, यही मैंने किया। आप जल्दी करते हैं, R2 माइनस R1, सही है, सही है, जल्दी से बोलो, सही है, सही कर रहे हैं हम, अरे जल्दी बोलो भाई, सही कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, सही कर रहे हैं, कोई परेशानी है यहां तक, अरे बोलो भाई, कोई परेशानी है, राइट। तो इसको फोर्स से मल्टीप्लाई करके, फोर्स कहां है, ऑफ न्यूटन, ये
तो इसका जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास कितना है, वो फोर्स है 4i कैप प्लस 3j कैप, राइट। तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, चलिए बढ़िया बात है। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो होगा F, दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप और इंटू करेंगे 6i कैप माइनस 2j कैप। आ जाओ, तो वर्क जो हमें मिलेगा, चलिए दैट इज 24 i इंटू आई स्क्वायर। कुछ बच्चे आज भी लिखते हैं सर आई इंटू आई, जब क्लासरूम के लेक्चर्स में होते हैं तो बोलते हैं सर आई इंटू आई स्क्वायर होता है, जे इंटू जे स्क्वायर होता है, राइट। ओ वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। आई इंटू आई 1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस कर दो, 3 इंटू 2 दैट इज 6, जे इंटू जे 1, दैट मीन्स W इज इक्वल टू 24 माइनस 6, W इज इक्वल टू 24 माइनस 6 दैट इज 18 जूल हमारा आंसर। तो आप देख लीजिए बच्चा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइएगा जरूर। ये हमारा आंसर है 18 जूल। देखिए कैसे धड़ाक से प्रॉब्लम्स निकलते हैं, धड़ाक से प्रॉब्लम्स निकलते हैं। कोई मसला, कोई परेशानी, हाँ ना बोलो, कोई मसला है, कोई परेशानी है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे हमें क्लासरूम के लेक्चर्स में भी बोलते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से, सर सिलेबस कब खत्म होगा, सर सिलेबस कब होता है। अरे सिलेबस तो खत्म होगा, लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूं काम खत्म नहीं करना है। काम ना चन मकलावन के काम च करनी हेचनावन, जो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा है, परान परान पर गई खाली खर गई किताब बोल रही है बेवकूफा परना मकलावन ना छुन के है, तो चु हेचन खतर आमित। सिलेबस के पीछे मत भागो कि सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, जितना हमें बोला गया है, जितना हमें पढ़ाया गया है, क्या हमें उतना आता है। तो बार बार यही मसला होता है, आता तो कुछ आता तो कुछ है नहीं, बस सिलेबस 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 सिलेबस। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, जीनियस एकेडमी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है पूरी एनालिसिस करने के बाद हम सबसे आगे हैं सिलेबस में, और सबसे आगे सिलेबस में नहीं, एग्जामिनेशन में भी हम सबसे आगे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स जीनियस ने किए हैं। तो मैंने हमेशा बोला है, जीनियस का वादा मिले उम्मीद से ज्यादा। हम आपको यहां सिखाने आए हैं, काम खत्म करने नहीं आए हैं। ये यहां सेट कर लो, पहले तो यहां है नहीं, अगर होता तो इसका यूज करते, आपके पास तो ये है नहीं, तो यूज क्या करोगे। चलो अब हम बोलते हैं ना आपको क्या करना है, सिलेबस खत्म नहीं करना है, हम आपको सिलेबस खत्म करके भी देंगे, लेकिन जितना हम पढ़ाते हैं उतना आपको आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो, तभी आप सक्सेसफुल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दो इंपॉर्टेंट बातें, सिलेबस के पीछे नहीं, जो बताया गया है उसको सीख के जाना है, उसको सीख के जाना है। जो चीज जिंदगी में आप सीखते हो वो आप कभी भूल नहीं जाते हो, और जो आप जिंदगी में रट के करते हो वो हमेशा आप भूल जाते हो। तो इसीलिए रट्टा वाली कहानी यहां नहीं चलेगी। तो यहां सिखाने के लिए हम आए हैं, तो हम आपको सिखा के ही जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो डियर स्टूडेंट्स, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, स्क्रीन टाइम कम कर दो और प्रैक्टिस में लग जाओ, प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे बच्चों की मेमोरी अब लॉस हो गई है, वो मोबाइल की वजह से हो गई है, मोबाइल गेमिंग की वजह से हो गई है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो आप बोल रहे हो दूसरी जमात, क्या आपका बच्चा दूसरी क्लास में है, हमने आपके लिए लाया है एक ऑनलाइन का प्रोग्राम। अरे आपने तो उनकी लाइन ही खत्म कर दी है, क्या ऑनलाइन का प्रोग्राम बोलते हो। हमें तो 2 साल के बच्चे को हम 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को स्क्रीन दे दो। और आजकल एक इंपॉर्टेंट और एक चीज भी है, अब टीवी सामने रखना है, टीवी पे देखना है, कहीं और लेक्चर चल रहा है, आप कहीं और देख रहे हो। अरे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स ध्यान दो, होशियार हो जाओ, जागो जागो। ये आपके बच्चे का करियर खत्म कर रहा है। 1000 में से 1 कंसंट्रेट इस मोबाइल पे करने जा रहा है। 1000 में से 1 बच्चा कंसंट्रेट मोबाइल पे करेगा, मोबाइल पे जो वीडियो चल रहे हैं उन पे करेगा। जो 1000 में से 999 बच्चे तो खत्म हैं,
उनका तो सब कुछ खत्म कर दिया आपके, लेकिन आप पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो, आपको पता ही नहीं चला बंद कमरे में मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं चला इस बच्चे को इस एज में क्या चाहिए, एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए इसको, और ये उसकी तलाश में होता है मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। लेकिन बेवकूफ पेरेंट्स, आपको यह भी पता नहीं है कि एक बच्चा 9-9 घंटे एक कमरे में क्लास दे रहा है ऑनलाइन, और आप चुपचाप देख रहे हो कि मेरा बच्चा अंदर ऑनलाइन पढ़ रहा है। थोड़ा सा होशियार हो जाओ, आपके बच्चे की डिविएशन हो रही है, वो गलत कामों में जा रहा है। ये मैं देख रहा हूं हाल मोबाइल ने कहां से कहां हमें पहुंचा दिया। तो आप भी ध्यान रखिए, खुदा के वास्ते ध्यान रखिए। तो आप सस्ते में मत जाइए कि 4,000-5,000 रुपये का कोर्स है, लेकिन वो 5,000 रुपये आप पूरी लाइफ आपके बच्चे की खराब कर देता है। मैंने बोला है 1000 में से एक बच्चा कंसंट्रेट कर पा रहा है, 999 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मुझे कॉलेज मिल रहे हैं, सर ऑनलाइन में सिलेबस खत्म नहीं होगा। अरे क्या खत्म होगा ऑनलाइन में सिलेबस, कैसे खत्म होगा? हम तो यहां 3-3 टीचर्स लेके बैठे हैं, फिजिकल है, इंटरेक्शन है, एग्जामिनेशंस हैं। हम बच्चे के मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं कि आपका बच्चा कम परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ऑनलाइन में दिखाए, बंद कमरे में तो परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस। कहां से देखोगे, कहां से बच्चे की परफॉर्मेंस देखोगे? किस टीचर के राबिते में हो आप, ताकि आपको पता चले मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है? अभी से पेरेंट्स इस स्टूडेंट को बेचारे को पता ही नहीं है, एडोलसेंट पीरियड में है। इस एज में वो ये ख्वाहिशात करेगा कि मुझे मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, मैं अपने दोस्तों से चैटिंग करूं, और आपको ये भी पता नहीं है मोबाइल गेमिंग पे कितने पैसे जा रहे हैं उसके। खुदा के लिए अब होशियार हो जाओ, बच्चों पर पूरा वॉच रखो, नज़र रखो, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है। बाकी आप कितनी भी प्रॉपर्टी बनाओ, अगर ये प्रॉपर्टी सही नहीं लगी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है आप जैसा फेलियर इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। आप कितना भी कमाओ, अगर आपका बच्चा कल की डेट में एडजस्ट नहीं है, कल के डेट में खुदा न खास्ता ड्रग में मुलव्वस हो गया, तो किस लिए बना रहे हो आप? जो बेसिक प्रॉपर्टी है उस पर नज़र रखो, कल के डेट में पछतावा रहेगा। इसलिए अभी एज है, अभी टाइम है, अपने बच्चे पर प्रॉपरली वॉच करो, ठीक है? तो नेक्स्ट बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कैसे आते हैं। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स। फिर भी वही चीज, देखो कितने न्यूमेरिक, एक टॉपिक का जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्या मुश्किल लगेगा आपको। हेलो, आ जाओ सर, कितने दिखाओगे? अरे आज तो पूरी रात दिखाऊंगा मैं। 3i कैप प्लस j कैप acts on a particle of mass 2 kg, hence the particle is displaced from a position 2i cap plus k cap to position। दो पोजीशन है हमारे पास, वही चीज। तो हमारे पास R2 क्या है, फाइनल वाली R2 हमारे पास फाइनल पोजीशन जो है, हमारे पास R2 जो है, हमारे पास जो R2 पोजीशन है, R2 पोजीशन, R2 जो हमारे पास है, R2 पोजीशन जो है हमारे पास, R2 जो फाइनल पोजीशन है R2, वो किसके बराबर है? 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, यानी 1k कैप। ये हमारे पास R2 है। R1, R2 ये है, R1 क्या है? R1 है माइनस करके 3i कैप प्लस j कैप, बाहर रखा मैंने माइनस, अब अंदर लेके चलूंगा डेल्टा आर इज इक्वल टू, चलिए डेल्टा आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप, यानी 1j कैप। चलो बता दो आंसर इसका कितना आएगा। 4i कैप में से 3i कैप गया, डेल्टा आर, 4i कैप में से 3i कैप गया तो i कैप रहा, 1i कैप, 3j कैप में से एक j कैप किया, 3j कैप में से एक गया तो यहां पर रहेगा 2 प्लस 1, तो यहां रहा प्लस 2j कैप, माइनस k कैप, तो यहां हमारे पास माइनस 0k कैप है, तो माइनस k कैप, ये रहा हमारा डेल्टा आर। एक बार चेक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नीट यूजी 2013 का है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, आप इसको प्रॉपरली चेक करिए, प्रॉपर चेक करिए।
आप इसको तब तक हिसाब लगाइए, तब तक मैं देखता हूं। शाबाश। 2i कैप प्लस 3j कैप, जल्दी से आप देख लीजिए इसको क्या आंसर आएगा। शाबाश बच्चा, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से क्या सही जा रहे हैं हम, जल्दी से बता दीजिए। 4i कैप 3i कैप प्लस j कैप, हां चलिए जल्दी से बताइए। 2i कैप 4i कैप माइनस 3i कैप, पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 4 माइनस k कैप माइनस 2i कैप। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है। पोजीशन वेक्टर माइनस 2i कैप, R2 R1 क्या है हमारे पास, फिर से चेक करते हैं। R1 क्या है हमारे पास, एक बार देख लीजिए इसको। क्वेश्चन में थोड़ा मैंने, ये हमारे पास है R2 और R2 जो है वो ये है और R1 ये है, मतलब माइनस ये वाला है 2i कैप माइनस k कैप, यानी j यहां पर नहीं है, j यहां पर नहीं है, हमने गलत लिखा था अभी। ये है फाइनल R2 और ये है हमारा R1। अब कर दीजिए, जो हमारे पास डेल्टा R होगा वो डेल्टा R क्या होगा, तो अब 4 में से 2 गया तो 2i कैप, शाबाश। अब यहां पर j नहीं है तो प्लस 3j कैप, और माइनस जो है तो हमारे पास है माइनस k कैप, और ये है माइनस k कैप माइनस माइनस R2 माइनस R1, तो ये बनेगा माइनस ट्वाइस k कैप। देखिए जरा, माइनस ट्वाइस k कैप, माइनस ट्वाइस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ट्वाइस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ट्वाइस k कैप। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं। अब क्या कर दिया मैंने, डेल्टा R मैंने निकाला। चलिए बढ़िया है, मैंने डेल्टा R निकाला। अब जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 निकल गया तो सिंपली फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स से डॉट लेते हैं, तो फोर्स क्या है, F क्या है, F है 3i कैप प्लस j कैप। चलो, तो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क होगा F डॉट S, तो ये होगा F हमारे पास है 3i कैप प्लस j कैप, और हमारे पास क्या है, S कितना है हमारे पास, यानी डेल्टा R कितना है, डेल्टा R S जो है डेल्टा R है, डेल्टा R है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ट्वाइस k कैप। आ जाओ मल्टीप्लाई करो, 6 I इंटू I1, 3j इंटू 1 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई है 0 तो नहीं आया, तो आंसर है हमारे पास 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 जूल आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, यहां पर ध्यान देना है बच्चा, यहां पर k नहीं था ना, तो ये k है तो 0 है, तो इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, तो वहां बचा हमारा 9 जूल। कोई परेशानी यहां तक, कोई मसला यहां तक, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। हाँ जल्दी से बोलो, R2 माइनस R1, अरे बड़े अच्छे से यूं का यूं करेंगे आप, यूं का यूं, अरे समझ आ रहा है, इतना मुश्किल है नहीं, क्या मुश्किल लग रहा है, नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब खुद करो, कितना काम मुझ पर छोड़ोगे। A particle moves from point P1 to, a particle moves from a point P1 to। अच्छा, इस तरह अगर माहौल बनेगा P, सर ये क्या चीज बना दी आपने, ये कुछ नहीं है, ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, जैसे R1 होता है, ये पोजीशन वेक्टर P है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1i कैप, इसको लिखते हैं प्लस 2j कैप, और k तो है नहीं, तो q जो है, q पोजीशन वेक्टर q दैट इज 2i कैप दैट इज 2i कैप प्लस 1j कैप 1g कैप 1j कैप 1j कैप प्लस 4k कैप। ये ऐसा लिखेंगे हम। अब तो ये बहुत आसान बन गया, अब तो ये बहुत आसान बन गया कि नहीं बन गया, आसान बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या है, i j और k के मैंने आपको बता दिया, आप सिंपली वही p माइनस q फाइनल माइनस इनिशियल करके q माइनस p करके आपको आ जाएगा। चलिए q माइनस p करते हैं, q
डेल्टा आर निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा आर निकालने के लिए क्या करें, क्यू फाइनल, दैट इज दूसरे कलर से मैं लिखता हूं, दैट इज 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 4k कैप, इसको माइनस करेंगे 1i कैप प्लस 2j कैप। अरे आसान है ना। तो डेल्टा आर जो है हमारे पास वो आएगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 4k कैप माइनस 1j कैप माइनस 2, अच्छा 1i कैप माइनस 2j कैप। चलिए अब लगा दो, अब जल्दी से लगा दो, जल्दी से लगा दो, क्या आएगा, चलिए 2i माइनस 1i है ये, 2i माइनस i तो डेल्टा आर हमारा निकलेगा 2i माइनस i तो i कैप, 1j माइनस 2j तो माइनस 1j कैप, ये ऐसे आ जाएगा। और प्लस जो है फाइनल 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल तो प्लस 4k कैप। देखिए जरा क्रॉस चेक कीजिए, i जो हमारे पास है, हमारे पास i माइनस 1j जो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4k, i माइनस j प्लस 4k, i माइनस j प्लस 4k, ये तो डेल्टा आर आ गया। फोर्स क्या है हमारे पास, ये रहा फोर्स। तो हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो फोर्स है, तो फोर्स क्या है, ये कलर दिखता तो है, चलिए फोर्स क्या है, फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमारे पास फोर्स है। और इसको हम डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करेंगे, i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। चलिए मल्टीप्लाई करके बता दीजिए क्या आ जाएगा, चलो बच्चा बताओ, 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस माइनस तो 1 इंटू 1 माइनस 1, ओके, 4 इंटू 1 दैट इज 4, k इंटू k 1 4, 2 में से एक गया 1 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 5 जूल। आ जाओ भाई देख लो अगर कोई होगा 5 जूल, ये लो भाई 5 जूल यहां पर आंसर आ गया। और बताओ और कितनी प्रैक्टिस कराऊं, बताओ कितनी प्रैक्टिस कराऊं, बोलो, जितनी बोलोगे उतनी प्रैक्टिस कराएंगे हम। अरे बोलो, अभी तो अभी लग रहा है क्या, अभी लग रहा है मुश्किल, अभी लग रहा है, अभी मुश्किल लग रहा है तो और एक सवाल करते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा होगा मुश्किल लग रहा होगा। कितने की है, कितने की, R2 माइनस R1 एफ से मल्टीप्लाई करना आएगा ना, आएगा। चल और एक करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, चल एक और एक देखते हैं, और एक देखते हैं, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आपके लिए तो कुछ भी करेंगे, हाँ आपके लिए कुछ भी करेंगे। और एक सवाल नहीं, इसके बाद और एक करेंगे, क्या टेंशन है, आता तो है ना हमें। चलिए नेक्स्ट है, तो हमारे पास जो F इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप फोर्स। चलिए फोर्स लिखते हैं, डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल टू d। अरे ये तो वाहियात सवाल है, अरे इससे सवाल तो इतने तगड़े किए हैं। यहां तो पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि खाली तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अरे आता तो है, मुझे नहीं लगता अब इसको पेन लगाने की जरूरत है, लेकिन अरे यार आपके लिए तो कुछ भी ना। चल F इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। और हमारे पास जो d है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये d है। तो हमारे पास वर्क W इज इक्वल टू F डॉट एस। अरे बोलो, अच्छा इतना भी तो बोलो, अब तो बात तो करो। W इज इक्वल टू F 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आ जाओ, 2 इंटू 3 6 i इंटू i 1 माइनस 2 इंटू 1 2 4 माइनस 4। अरे वाह, W इज इक्वल टू 6 माइनस 6, अरे 0 शून्य है कोई आंसर? पहला ही हाय मैं मर जावा। देखा कितने आसान आसान से सवाल हैं, आसान आसान से सवाल है, कोई परेशानी है? और एक करा दूं क्या? बोलो बोलो, और एक करा दूं?
अरे बोलो तो सही, आपके लिए तो कुछ भी, इतने सवाल तो मैं तो खुद अब मंदच गया, अब इतने ऐसे ऐसे सवाल दिखा के। अरे आपको तो शर्म नहीं है, बेशर्मो, इतना तो आप करके जाओ। अब तो आएगा ना, अब तो आएगा आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, इतना तो आएगा करना। के को के साथ करना तो आएगा, फोर्स से करना आएगा। और आपको पता है आई इंटू आई होता है, आई इंटू आई स्क्वायर होता है। ये तो मैं आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1 और के इंटू के 1। नेक्स्ट करें, और एक सवाल, और एक क्वेश्चन करें क्या? खुद आएगा आपको, चलिए करके देता हूं मैं आपके लिए कुछ भी, चलिए बताइए क्या क्या है। डाटा बता दीजिए आप। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरी पोजीशन वेक्टर ये है। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है? डेल्टा आर निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। R2 है 14J 14I प्लस 13J प्लस 9K। आ जाओ, ये हमारे पास डेल्टा आर कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है? इनिशियल है 3I प्लस 2J माइनस 6K। आ जाओ, चलिए करके बता दूं, आप करोगे खुद ही? होगा, प्रैक्टिस करोगे? चलिए करके देता हूं मैं। डेल्टा आर इज इक्वल टू 14 कैप प्लस 13 कैप प्लस 9 कैप माइनस 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 6K कैप माइनस प्लस। आ जाओ सॉर्ट आउट करते हैं, मसला सॉर्ट आउट करते हैं। 14 में से 3 गया, ओ आई को 14I में से 3I गयो 11I प्लस 13J में से 2J गयो प्लस 11J, हाँ प्लस 6 9 ओ 15K। देखो भाई, ये तो हमारे पास डेल्टा आर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई, 4 से डॉट प्रोडक्ट ले लो तो आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट ले लो, W इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट ले लो, W इज इक्वल टू, W कितना? वर्क फोर्स कितना? 4I कैप प्लस J कैप, 4I कैप प्लस J कैप आ जाएगा आपको। करके बताओ जल्दी से, ये डेल्टा आर है, दिस इंप्लाई W इज इक्वल। आप ऐसा भी लिखोगे, अब बार बार आपसे ये एक ही बात बोलनी पड़ती है यार, एस लिखता हूं, डेल्टा आर लिखो, कोई मसला नहीं। 4I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, और यहां से आएगा 11I कैप प्लस 11J कैप प्लस 15K कैप। आ जाएगा, अब आ जाएगा मल्टीप्लाई करना। अरे मैं दिखाता हूं, आपकी किडनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, दिमाग पे सॉरी। तो ये होगा 4 इंटू 11 हो गए 44, I इंटू I 1 प्लस 11 इंटू 1 11, 15 ते 45। आ जाओ, तो मेरे ख्याल से W इज इक्वल टू एक गया तो 100 जूल। आ जाओ, और एक बताओ कितने हुए, और एक बताऊं। अब बोलना हमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अब बता दो, मजाल है आप लोगों की बोलने की, अरे मजाल है आप लोगों की बोलने की कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता। अब तो शर्म करो बेशर्मो, इतने सवाल दिखाए मैंने। ओ ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए। अब दूसरे तरह का सिनारियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखना, अब हमें ये पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने एक पॉइंट यहां से ले लिया, फ्रॉम ए, इसको यहां से ले लिया, कहां? बी ले लिया हमने, ये वाला ऐसे पाथ इस्तेमाल की है। ये हमारा फोर्स F है, ठीक है, चलिए बढ़िया है। टेकन फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F अलोंग ए क्वार्टर साइकिल। ये हमारे पास क्वार्टर साइकिल है, बिल्कुल सही बात है, क्वार्टर साइकिल है। रेडियस R, इसके पास रेडियस R है। वर्क डन बाय दिस फोर्सेस। बताओ जल्दी क्या करोगे, बताओ जल्दी,
कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया मिल रहा है? मिल रहा है आइडिया? खोपड़ी में आ रहा है कुछ आइडिया? खोपड़ी में आइडिया कुछ आ रहा है? खोपड़ी आइडिया आ रहा है कुछ? लगे रहो, लगे रहो। मोबाइल ने तो आपकी दुनिया ही बिगाड़ दी है। मोबाइल की दुनिया से बाहर आओ, एक हसीन दुनिया है। मोबाइल से बाहर आके एक हसीन दुनिया है, लेकिन इस हसीन दुनिया को आपने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया है। अरे बाहर आ जाओ, तब देखो मज़ा क्या। इस मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाओ। अपना बचपना ख़त्म किया आप लोगों ने, अपने बचपन को ख़त्म किया आप लोगों ने इस मोबाइल को देख देख के, रील्स को देख देख के। आज क्या हुआ? आप मोबाइल गेमिंग पे पैसे लगा के, मोबाइल गेमिंग पे पैसे लगा के। अरे क्यों माँ बाप के पैसे ख़त्म कर रहे हो बच्चों? माँ बाप के पैसे ख़त्म मत करो मोबाइल गेमिंग पे। आप अपनी बाप की मेहनत देखो, अपने माँ बाप की मेहनत देखो, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। और आपने एक ऐसा ड्रग हाथ में लिया है, माँ बाप से पैसे लेते हो, मोबाइल गेमिंग पे लगाते हो, रिचार्ज कर देते हो, इंटरनेट पे बैठते हो, उन चीज़ों और इन चीज़ों में खामखा अपना टाइम वेस्ट करते हो। उस माँ उस बाप के पसीने को देखो जो दिन भर बेचारा मेहनत करके आप लोगों के लिए कि कल की डेट में आपका फ्यूचर अच्छा हो, ताकि आप थोड़ा बहुत कल की डेट में जब आपका बाप बूढ़ा हो जाए, तब उसकी मदद करोगे, तब उसका सहूलियत आप लोग बनोगे। लेकिन क्या आप अपनी ज़िंदगी को इस मोबाइल ने आपकी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। अल्लाह के वास्ते इस दुनिया से बाहर आ जाओ। अपने माँ बाप को शाम के टाइम जब बाप थका हुआ घर आ जाए तो एक नज़र से उसको देखो और फिर डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। उसकी मेहनत, उसके पसीने को देख के ये डिसाइड कर लो कि आप लोगों को क्या करना है। खुदा के लिए कल की डेट में वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए कल की डेट में सहूलियत, कल की डेट में आपकी वजह से उसको सहूलियत मिलनी चाहिए। उसका जो सर है फ़ख्र से ऊंचा उठना चाहिए। और जिस दिन याद रखना, जिस दिन आपकी पहचान आपके बाप से होगी, नहीं, आपके बाप की पहचान आपकी वजह से होनी चाहिए। कल की डेट में ये नहीं बोलना चाहिए फलानी का बेटा जा रहा है तो आपकी पहचान आपके बाप से होगी, ये फलानी का बेटा जा रहा है। ना बाबा ना, ऐसा बनो। कल के डेट में ये बोलने चाहिए ये फलानी बच्चे का बाप जा रहा है। यानी आपके बाप की पहचान आपसे होनी चाहिए, आपकी पहचान आपके बाप से नहीं होनी चाहिए। ऐसा बनो, ऐसी मेहनत करेंगे और हम इंशाल्लाह आप पे इतनी मेहनत करेंगे, हम सब मिल के आप लोगों के पेरेंट्स के जो ख्वाब है उनको हम इंशाअल्लाह पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। उतनी मेहनत आपसे कराएंगे, ये जीनियस का वादा है। हमेशा मैं यही चीज़ आपसे नसीहत कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए इस मोबाइल की दुनिया से और ये जो इंटरनेट की दुनिया है इससे बाहर आ जाओ। मेहनत करेंगे मिलके और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये हमारे पास बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास है मिस्टेकन फ्रॉम, हमने इसको यहां से ले लिया। मान लो अब आप मुझे बताइए फोर्स किधर लग रहा है। यहां से फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फिर से देख लीजिए, अगर यहां हमारा फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। लेकिन आपको पता होगा, हमने आपको बार बार समझाया है, जिस तरह से हमारे पास पहला जो हमारे पास खेल था उस टाइम हमने आपको समझाया है कि वर्क क्या होती है। वर्क होती क्या है? वर्क होता है फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वर्क जो है, W जो है, वर्क जो है फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement, component of force in the direction of displacement, component of force इन द डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का कंपोनेंट या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब बताइए, ये हमारे पास फोर्स है,
और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कौन है, ये वाला। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट तो किसी काम का नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट काम का है, ये वाला कंपोनेंट काम का है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। तो यहां से डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है फोर्स एफ है, ओके, फोर्स एफ है, फोर्स एफ है, फोर्स एफ है, और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट आर है। तो सिंपली जो वर्क डन है वो एफ आर है, तो वर्क डन जो है वो एफ आर है, बस खत्म। क्या मसला था, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलो, या कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है, तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, component of displacement, component of displacement, component of displacement in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force, ये लो, in the direction of force। क्या मसला है, क्यों ऐसे देखो कि क्वेश्चन ऐसे लाल घसनो खड़ा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो मेहनत करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मसला है। प्रैक्टिस इंसान को, गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन के लिए एक गुड प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, एक गुड प्रैक्टिस होना जरूरी है। याद रखिए बच्चा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मैंने बार बार बोला, कोई भी आपको फिजिक्स पढ़ाए, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमारा हाथ सेट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रोनाल्डो को एक बार पूछा गया, रोनाल्डो ने एक बार बताया कि मैं एक फुटबॉल पर 1000 बार किक लगाने से नहीं डरता, 1000 बार किक लगाने से नहीं डरता, मैं उस एक किक से डरता हूं जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस की गई हो। मैं उस एक किक से डरता हूं जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस की गई हो। अब बताइए, 1000 बार प्रैक्टिस की गई किक से मैं डरता हूं, 1000 किक से मैं नहीं डरता, मैं उस एक किक से डरता हूं जिसकी प्रैक्टिस 1000 बार की गई हो। बच्चा, यही फिजिक्स है। इस फिजिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और आपके नीट में कामयाब कराएगा फिजिक्स से। याद रखना, आपका मेरिट, आपका स्कोर डिसाइड करेगा आपकी फिजिक्स अच्छी तो आपका स्कोर अच्छा, आपका स्कोर अच्छा तो आपका MBBS कॉलेज बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए, ब्लॉक ऑफ मास m, यहां पर ब्लॉक है, कोई ब्लॉक यहां पर है, ब्लॉक ऑफ मास m, इस पर फोर्स ऐसे लगता है। A block up is pulled along a circular path, इसको हमने ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाया है, by means of constant horizontal force action, work done by this force। सिंपली मैंने बोला वर्क डन है, वर्क डन है क्या, वर्क डन है W इज इक्वल टू फोर्स, या तो आप लिखोगे फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement, in the direction of displacement, या component W is equal to force dot component of displacement, component of displacement in the direction of force, in the direction of force। अब बताइए, अब मसला ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो ये है ऐसे, तो क्या करोगे आप इसमें, ये बढ़िया है, इसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वोनमुत इस चीज दोला तक गोल वालो आसान, यह दोला अत वालो गोल, अ कंपोनेंट गोस योर, यह गोस डिस्प्लेसमेंट s, यह गोस s cos ऑफ थीटा, s cos ऑफ 60, यह r, सॉरी, तो इसको हम लिखेंगे r cos ऑफ 60, ऐसे लिखो, r cos ऑफ 60, r cos ऑफ 60, ये वाला कंपोनेंट है r cos ऑफ 60, और ये वाला है r sin ऑफ 60। ठीक है, अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी इस वाली डायरेक्शन में है
और ये वाला जो है हमारे पास कंपोनेंट जो है ये है r sin 60। अब देखिए तो ये वाला जो है r sin 60, तो ये कितना होगा, ये भी होगा r sin 60, r sin 60। तो हमारा वर्क डन किसके बराबर होगा, W इज इक्वल टू F इंटू r sin ऑफ 60, that is F into r sin 60, that is root 3/2, that is FR root 3/2, FR root 3/2, root 3/2 FR, ये हमारा आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर कैसा रहा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और किस तरह के लेक्चर्स में किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहिए वो आप मुझे बता देंगे। आने वाले सेशन में ये जो बहुत तगड़े लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा बेहतरीन लेक्चर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी चैनल यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी के नाम से आपको बने रहना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।